दास स्वामी मेरे सर्ब कला बणियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परियारे। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुणीता कर कृपा मोहि नाम देहो। नानक दर सरीता कर कृपा मोहि नाम देहो। नानक दर सरीता। परम सन्मान सत्कारयोग गुरगद्दी ते सुभाईमान दसां पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक अमृतमयी हजूरी विखे जुड़ बैठी सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत। सतगुरु जी दियां बेअंत रहमतां बख्शिशां होईयां हन। गुरु साहिब जी दी पावन हजूरी विखे गुरु के पावन दरबार विखे रोजाना की तरह जुड़ मिल बैठे हैं और इन्हां घड़ियां नूं सकारत सफल बनाउंदियां होइयां गुरु घर दे कीर्तनियां पासों पावन पवित्र बाणी दे शब्द कीर्तन प्यार सत्कार सहित आप जी ने श्रवण कीते अमोलक अत अमोलक घड़ियां नूं सकारत और सफल बनाया है। कीर्तन तो उपरंत आओ गुरबाणी विचार दी लड़ी दे नाल जुड़िए और गुरु के शब्द दा जो दीवा है शब्द रूपी चिराग है उन्होंने अपने हिरदे अंदर मन अंदर जगा के अंदर नूं रोशनाउण दा चानण भरपूर करन दा यतन करिए। गुरु की विचार गुरु की बाणी दी विचार गुरमत दी विचार दे राही। सो सब तो पहला सतगुरां वल्लों अमृत के दाते सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह साहब वालों बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। कोई रसना वांझी ना रवे गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी पावन मुबारक रसना तो उचारण अमृतमयी बाणी सहसकृति जिहड़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे जिथे 31 राग संपूर्ण हुंदे हन जैजावंती राग तो उपरंत
ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਨ 4 ਸ਼ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1353 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇਰਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਅੱਧੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਖਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਸੀ 30 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹਿਰਨ ਮਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ, ਇੱਕ ਭਰਮ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੰ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰੁਮ ਛਾਇਆ, ਦਰੁਮ ਛਾਇਆ ਭਾਵ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਛਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠਿਆਂ ਹੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੀ ਮੂਲਿਆ ਆਵੈ ਕਿਸੈ ਥਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮੋਹ 'ਚ ਅਟਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਵੇਖੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ
मोह ममता दे विच अटक के ते गुरु ही भुल जाना, रब ही भुल जाना, वो तो फिर सतगुरु कहते मोह ममता दा जाल होया, जंजाल होया। धंधा करत्या निहफल जन्म गवाया, सुख दाता मानना। सानू समझ होनी चाहिए है कि साडी धंधे दी दुनिया की है, साडी परिवार दी दुनिया की है, ते साडी धर्म दी दुनिया की है। धर्म प्रति, गुरु प्रति साडे की फर्ज, समाज प्रति साडे की फर्ज, इन्हां दी सानू समझ होवे। एक जगह ते अटकना नहीं है। अगे खैर महाराज सच्चे पातशाह अज 31 नंबर सलोक राही एक ते समझा रहे हैं कि मनुख ने किसी भी चीज़ का अभिमान ते हंकार ते दावा नहीं करना। जिमें पिछे भी एक जगह ते सतगुरु ने एक सलोक राही कहा सी कि मालक जी, ना मेरे को बहुत उच्ची बुद्धि है, ना अकल है, न समर्थं न सेवकं, ना मैं कोई समर्थ हाँ ना कोई सेवक हाँ, ते ना ही मेरी उस परम परखोतम परमात्मा दे नाल कोई प्रीत है, मैं झूठे दावे करा। उदण आपां दावियां बारे साखी भी आप जी दे नाल सांझी कीती सी कि जेड़े सिख आनंदपुर आके कहिंदे सन असीं पक्के सिख हां, दावे करदे हां, किवें उन्हां दे झूठे दावे फिर सारिਆਂ सामने असलीयत उन्हां दी सामने आई कि दावे झूठे ने। महाराज सच्चे पातशाह उस तरह की विचार अज दे पावन शब्द राही समझा रहे ने, ते नाल फिर अखीर च जाके जो संगत की वडियाई है उहदी समझ ते सूझ-बूझता सानू प्रदान कीती बख्शी है। महाराज कहंदे नच विद्या निधान निगमं, नच गुण अग्या नाम कीर्तन है। ये नच शब्द का भाव है ना ही नहीं। हे मालक जी, ना तो मैं वेदां दे ज्ञान का ज्ञाता हाँ। विद्या भाव है विद्या पढ़ाई। निदान शब्द बाणी च दो रूपों च आया है। एक सामने आप जी वेख रहे हो, नन्ने दे सिहारी अगे धद्दा लग्या है ते फिर कन्ना ते नन्ना, यह है निदान। ਇਹਦਾ मतलब है खजाना। एक है निदान, धद्दा नहीं है, धद्दे वाली जगह ते दद्दा शब्द आउंदा है। निदान उहदा भाव है कमजोर, निमाणा, निदान। इत्थे निदान धद्दे दे नाल आया है, ते जिथे भी निदान शब्द धद्दे दे नाल आउंदा है इहदा भाव है खजाना। वो खजाना धन का खजाना हो सकता, विद्या का खजाना, वो अगे प्रकरण मुताबक गल्लां चलदियां हन। इत्थे है मालक जी, ना तो मेरे कोल विद्या का कोई खजाना है। निगमन शब्द का भाव है कि वेद, वेद आदि जिहड़े हिंदू धर्म के सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। हे मालक जी, मेरे कोल कोई विद्या नहीं है, कोई विद्या का खजाना नहीं है, जां मैं कोई वेदां का बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हाँ। क्योंकि इत्थे ऐसे भी बड़े लोग सन जेड़े कहिंदे सन कि असीं बड़े उच्च कोटि दे वेदी पंडित हाँ, ते साडे वर्गा विद्वान कोई नहीं है। गुरु नानक महाराज जी के जीवन च भी एक घटना आउंदी है। मटन विखे सतगुरु जदों गए सन, एक कश्मीर वाले पासे नगर है, उत्थे एक पंडित ब्रह्मदास बड़े दावे करदा सी कि मेरे वर्गा वेदी पंडित ते है ही कोई नहीं है, विद्वान। ते जे कोई ये दावा करदा है कि मैं बड़ा वड्डा पंडित हाँ, वो पहला ब्रह्मदास दे नाल आके बहस करे। जे ते वो मेरे नाल बहस करके जित गया फिर मैं मन्नागा वो पंडित है, नहीं तो अपने आप वो अधीनगी कबूल करे। वो लोगों के नाल पढ़िया लिखिया विद्वानां दे नाल बहस करया करदा सी। पहलियां समयां च बहस बसाई बड़ी चलिया करदी सी। ते हुंदा की सी, जिहड़ा बहस दे विच हार जांदा सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां ग्रंथ पुस्तकां ਹੁੰਦੀਆਂ सन वो सारियां जितण वाला पंडित लै लैंदा सी। ते ये ब्रह्मदास ने बड़ियां पुस्तकां इदां दूजिਆਂ ਨੂੰ हरा हरा के इकट्ठियां कीतियां सन। इसे नूं संबोधन करदियां गुरु नानक साहब ने कहा सी कि पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरीया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है। जिन्ना मर्जी बंदा पढ़ लवे, पढ़ के तू दूजिਆਂ ਨੂੰ हरा के किताबां दे गड्डे भी भावें लदे होण, पर चेते रखीए हंकार किते काम आउण वाला नहीं है। जे वेदां च दसी हुई उत्तम सिक्ख्या नूं जीवन का आधार नहीं बनाया।
क्योंकि धार्मिक ग्रंथ ते सानू गुणवान बनना सिखाउंदे, हंकारी बनना कोई ग्रंथ नहीं सिखाउंदा। गुरु कहंदे नानक लेखा एक गल होर हूँ मैं चखना चख। ये पंडित ब्रह्मदास दे नाल गुरु नानक साहब दी विचार चर्चा हुई, जिहड़ा बड़े दावे करदा सी कि मेरे वर्गा विद्वान ही कोई नहीं है। अखीर उहनूं गुरु नानक महाराज दे चरनां 'च झुकना पिया सी ते गुरु साहब दे चरनां 'च वो झुक गया। और वेखो इसे ही पंडित ब्रह्मदास दी कुल दे विचों सी पंडित किरपा राम, जिहदी अगवाई दे विच फिर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब जी दे हजूर आए सन। क्योंकि पंडित ब्रह्मदास तो इस परिवार नूं गुरु नानक दे घर दीआं वडियाइयां दा पता सी। इसी तरह एक बड़े दावे करन वाला पंडित बेणी गोइंदवाल गुरु अमरदास साहब दे कोल पहुँच गया। इहदे कोल भी बड़ियां किताबां ते ग्रंथ सन। इन्हें सोचिया कि जे मैं गुरु अमरदास नूं वडे बहस दे विच हरा दिता, फिर ते मेरी दिग विजय हो जाएगी, फिर ते मैं संसार दा उच्च कोटि दा पंडित बन जावांगा, सारे पासे मेरी जय जयकार होएगी। इन्हें गुरु अमरदास महाराज नूं चैलेंज किया, जी मैं बड़ा विद्वान पंडित हाँ ते मेरे नाल बहस करो। महाराज कहन लगे कोई विचार चर्चा करनी है कर लवांगे, दस किदे बारे तू विचार करनी है। ये कहन लगा मन बारे। हुण वेखो एक ते साडे शरीर दे सूक्ष्म अंग हुंदे हन, अखां हन, कन है, जुबान है, इन्हां बारे ते गल करनी सौखी, सामने चीज़ां दिस रहीआं ने, पर मन नां दा कोई शरीर च पार्ट नहीं हुंदा है विचारा, ये फुरनियां दे समूह दा नाम ही मन है। ये कहन लगा जी मन बारे तुहाडे नाल बहस करनी है। ये जिहड़ा दावे करदा सी कि मेरे वर्गा पंडित कोई नहीं है, पंडित बेणी। महाराज कहन लगे किहड़े मन बारे गल करनी है, किहड़े चंचल मन बारे गल करनी है कि प्यारे मन बारे गल करनी है। ये उत्थे ही इहदे पैरां थल्लों जमीन खिसक गई, क्योंकि ये समझदा सी मन इक्को ही है। महाराज ने जदों दो मनां दी गल कीती, कहन लगा जी मन भी दो हुंदे हन। महाराज कहन लगे दो ही नहीं, मन दे ते हज़ारां भाग हन, हज़ारां तरह का मन है। उत्थे महाराज ने दो गल्लां कीतियां। एक ते सतगुरां ने पंक्ति पढ़ी, ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, ते दूजे नंबर ते महाराज कहन लगे ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। सतगुरु कहन लगे हुण दस बेणी तू चंचल मन की गल करनी है, प्यारे मन की गल करनी है। ये उत्थे ही ढिला पै गया, इनू तीजी गल ही कोई ना आई। कहन लगा महाराज मैं तो एवें ही दावे करी जांदा सी कि मैं बड़ा विद्वान हाँ, मेरे कोल बड़ा ज्ञान है, मैं जिस विषय ते तुहाडे नाल बहस करनी सी मैनू ते उहदे मूल दा भी पता नहीं है। सो दावे करन वाले बड़े, पर जदों दावियां नूं अगे दावियां तो भी वड्डियां दे नाल टक्करना पैंदा ते फिर पता लगदा है मैं किहड़ी जगह किन्ने पानी च। सो इस करके सतगुरु कहंदे एवें फोका मान ना करो, क्योंकि विद्या दा ज्ञान दा वेखो कोई अंत नहीं है। जिन्ना मर्जी बंदा पढ़ के अगे तो अगे चलिया जावे, बंदा एक सबजैक्ट चुन सकदा, उहदे ते जिन्ना मर्जी अगे तो अगे पढ़ लवे, मास्टरी कर लवे, PhD कर लवे, जिन्ना मर्जी वो ठीक है। एक विषय ते उन्हें बहुत पढ़िया ते बहुत जानकारी एक विषय दी हो गई, पर उहदे तो बिना दुनिया दे हज़ारां विषय होर भी हन सबजैक्ट, उन्हां बारे ते हो सकदा उन्हें कुछ भी ना पता होवे। कोई बहुत उच्च कोटि का डॉक्टर हो सकता है, पर उन्हें डॉक्टरी की, उन्हें इंजीनियरिंग का कोई पता नहीं है। कोई धर्म ते बहुत अगे पढ़ सकता है, पर दुनिया के बाकी किन्ने पक्ष ने उहदे बारे हो सकता उन्हें कुछ भी ना पता होवे। सो विद्या का कोई अंत नहीं है। तो गुरु कहते एवें फिर झूठे दावे भी नहीं करने चाहिए हैं। तो महाराज ने वो निमरता सानू सिखाई, अपने ते ढाल के गल करदियां सर्ब कला समर्थ होंदियां भी गुरु की कहते हैं, कहते नच विद्या निदान निगमं, साडे कोल ना ते कोई विद्या दे वेदां दे ज्ञान दे खजाने हैं, नच गुणग्या नाम कीर्तन है। ना असी ये दावा करते हाँ कि असी बड़े गुणवान हाँ जां गुणां दे बड़े पारखू हाँ, ना असी ये दावा करते हाँ कि असी बड़ी परमात्मा की सिफत करते। इत्थे ते वेखो बंदा
थोड़ा बहुता बाणी पाठ कर लवे, 4 दिन संगत च आके जुड़ गया तो फिर दूजिया सामने बड़े दावे करने शुरू कर दिंदा कि मेरे वर्गा ध्यानी कौन है, मेरे जिन्ना सिमरन कौन करदा, बाणी कौन पढ़दा। पर गुरु कहंदे ये भी दावा हंकार फिर एक रुकावट बनती, ये भी दावा नहीं करना। सतगुरु आप कहंदे हे मालक जी साडे कोल ते तुहाडी सिफत सलाह दे भी कोई दावे नहीं कि असीं कहीए कि साडे जिन्ना ध्याउण वाला नहीं है। नच राग रतन कंठं नह चंचल चतुर चातर है। फिर कहंदे ना साडे कोल राग विद्या दा ज्ञान है, ना साडे कोल कोई श्रेष्ठ राग ते ना ही कोई साडा बहुत उच्च कोटि दा कंठ है, गला है। क्योंकि कई ऐसे होंदे हन जिन्हां दे कोल राग विद्या दी बहुत ज़्यादा महारत हुंदी है, ते कई ऐसे होंदे ने उन्हां दे कोल राग विद्या ते भावें ढिली मट्ठी होवे पर कंठ इन्ना सुरीला हुंदा है कि वो दो गल्लां भी वैसे बोल देण ते इन्नियां मिठियां लगदियां ने कि बंदा चाहुंदा मैं सुनी जावां सुनी जावां। वो वैसे भी गावे ते लगदा है वाह क्या कमाल दा सुरीला कंठ है, गला है। सो महाराज कहंदे हे मालक जी ना असी राग विद्या दे धनी हाँ, ना कोई साडा कंठ गला बहुत वधिया असी ओदा दावा करिए, ते ना ही असी कोई बहुत ज़्यादा चतर हाँ जां बड़े ज़्यादा सियाणे हाँ। असी अपनी सियाणप जां चतराई दा दावा करके कहिए कि साडे जिन्ना चतर ते सियाणा कोई नहीं है मालक जी, ना कोई चलाकी जे ना कोई सियाणप है। अगे कहंदे भाग उद्यम लभद्यंग माया, नानक साध संग खल पंडित है। भाग उद्यम लभद्यंग माया, इनू लभद्यंग पढ़ना है तो दे दे सिहारी ऐड़ा उपर फिर टिप्पी लगा के। महाराज कहंदे पूरबले चंगे भागां करके ते उद्यम करके मनुख नू माया 4 टके धन प्राप्त हुंदा। जे 2 चीज़ां हन, एक ते है साडा उद्यम, एक है ओदी रहमत। उद्यम करना साडा फर्ज है, जे बंदा उद्यम ही ना करे ते बैठा दूजियां नू कोसदा रवे ते वो अज्ञानता है। महाराज ने पहले नंबर ते सानू उद्यमी बनाया। एक जगह महाराज कहंदे उद्यमी बंदे दी निशानी वेखणी होवे कि उद्यमी किन्ना क बंदा, ते की पता लगदा ओदे घर अन्न धन दी कदे तोट नहीं जी आउंदी जेड़ा बंदा उद्यमी है। उदो साहे क्या निशानी तोट ना आवे अन्नी। महाराज कहंदे उद्यमी दी निशानी की है, उहदे घर अन्न धन दी कोई तोट नहीं आउंदी क्योंकि बंदा उद्यमी है, मेहनत करदा है ते सारा कुछ जीवन दीयां लोड़ां नूं ओह पूरियां कर रहा है। आलसी बंदा उहदे कोल साधन भी होण ते ओह तां भी वरत नहीं पाउंदा है क्योंकि आलसी है। यानी जसवंत सिंह परवाना जी ने एक बड़ी प्यारी आलसी बंदे दी गल लिखी। वो कहंदे कोई बंदा गड्डा लैके जा रहा सी ते 2 बंदे अगे रस्ते दे विच लेटे हुए सन। वो गड्डे वाले ने आवाज़ दे के कहा भाई रस्ते तो लांभे होवो, मैं गड्डा लंघाउणा है। उन्हें 2 आवाज़ां मारियां, तीजी आवाज़ ते एक ने आवाज़ दी, कहण लगा ये बड़ा आलसी है, इन्हें नहीं पासे होना, तू गड्डे तो उतर के मेरियां ही लत्तां लांबे करके ते गड्डा लंघा के लंघ जाओ। कहण लगा वाह तेरे उद्यम तो बलिहार जाना, कमाल दा तेरा उद्यम है। सो बड़े लोग ऐसे हुंदे हन। ते एक विद्वान दे जां ये साडी पुरानी कहावत भी है साडे समाज दी कि उद्यम अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पौण, दलिदरी दे कर गऊं लवेरी उठ के चोवे कौन। जिहड़ा बंदा उद्यमी है उहदे कोल माया धन दी खाण पीण दे आहार पदार्थां दी कोई घाट नहीं रहिंदी। उद्यमी बंदा बहुता नहीं ते घट तो घट अपने जीवन दीयां लोड़ां नूं ते पूरियां करदा ही जांदा है। उद्यम अगे लक्ष्मी पखे अगे पौण, जिवें पखे अगे हवा अपने आप ही आउंदी है, इदां उद्यमी दे कोल लक्ष्मी धन अपने आप आउंदा जांदा है। पर दलिदरी दे कर गऊ लवेरी उठ के चोवे कौन। बंदा होवे दलिदरी, पशु है दुधारा दुध देण वाला, ते जे बंदा उठ के चोण दा उद्यम ही नहीं कर रहा तो उन्होंने की प्राप्त होना है। सो उद्यम दे नाल बहुत कुछ प्राप्त हुंदा है। इस करके प्रथम उद्यम की गल है, ते नाल वेखो रब्बी रहमत भी चाहिदी है। ठीक है उद्यम कई बार बंदा उद्यम करदा, बिजनेस खड़ा करदा, पर बिजनेस फेल हो जाता क्योंकि रब की अजे रहमत नहीं जां मालक की कृपा नहीं। सो महाराज कहंदे भाग उद्यम लभद्यंग माया,
ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੂਰਖ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਤਿਤ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਾਪੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਲ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਵਰਗੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਰਾ ਭਾਈ ਧੰਨਿਆ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ, ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬਕਤਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇ। ਅੰਧਲੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੇ ਸਕਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੈ ਪਰਸੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਜਾਰੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕੌਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੈ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਜਾਰੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੌਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੈ ਪਰਸੈ, ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲਾ ਕੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਜਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੌਮਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੇ ਕਿ ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੈ ਪਰਸੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋ ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਜਾਰੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੈ ਪਰਸੈ ਕਬਹੂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਕੌਮਾ। ਮਰੈ ਪਰ ਪਾਵਕ ਜਾਰੈ, ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਲ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦਾ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ 31 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त ऊच प्रेम धारणी। कंठ रमणीय महाराज सच्चे पातशाह कहते असी जिहड़ी गल च माला पाई है, बाहरों माला नहीं पाई है। लोग माला पाउंदे ने, कहते असी वो माला नहीं पाई, क्योंकि गुरमत ने आ माला मूला नूं भी बहुती कोई मानता नहीं दिती है। महाराज कहते तू सवास सवास रब नूं जपना, किसी माला नूं हत्थ च लैके किहड़ियां हिसाबां किताबां च पै रिहां। जदों वो देण वाला दातां देंदियां कोई हिसाब नहीं रखदा, ते फिर तूं उहदा नाम जपदियां कदा हिसाब रखना है? तेरा तो हर साह उहदी इबादत च जाना चाहिए है, क्योंकि जिहड़ा साह उहदी याद तो बिना लंघिया वो तो साह ही व्यर्थ है, वो साह ही व्यर्थ है। दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। सो महाराज कहते साडे कंठ दे विच हर वक्त मालक दा नाम चलना यही साडे लई माला है। और जिहड़े माला पकड़ के रखते सन वो एक छोटी जी माला नूं पाउण वाली एक थैली भी रखते सन कि माला थल्ले ना लगे, पैरां नूं ना लगे जी, इहदे नाल रब दा नाम जपना है। सो महाराज कहते वो जिहड़ी थैली सी उहनूं फिर वो अपने उपर रखते सन, हत्थां नूं उपर चुक के। महाराज कहते जिहड़ी साडे कंठ दे विच गले दे विच हर वक्त मालक दे नाम दी याद चल रही है, यही साडी माला है। और परमात्मा दे नाल जिहड़ा साडा प्यार है यही समझो वो थैली है, जिहड़ी थैली दे विच वो माला जपण वाले अपनी माला नूं पा के रखदे हन। हस्त ऊच प्रेम धारणी, हत्थां नूं उपर रखना यही साडे लई वो माला वाली थैली है। तो हत्थां नूं उपर रख के जिहड़ी थैली हत्थ च पकड़दे ने वो की है? प्रेम धारणी। अंदर वाहिगुरू प्रति प्रेम धारना ये थैली है, हर वक्त मालक दी याद ये साडी माला है। जी भण जो उत्तम श्लोक उदरनंग नैण नंदनी। ते जेड़े फिर अपनी जुबान दे राही परमात्मा दियां वडियाइयां दे श्रेष्ठ बोल बोलदे हन, जिन्हां ने अपने गले नूं ही परमात्मा दे सिमरन दी माला बना लिया, हिरदे नूं परमात्मा दा नाम रूपी माला जपण वाली थैली बना लिया, जुबान तो जेड़े हमेशा मालक दी वडियाई करदे ने। उदरनंग नैण नंदनी, नैण नंदनी दा भाव है अखां नूं एकदम खिच लैण वाली माया। वो माया दे प्रभाव तो बच जाते हैं जिन्हां दे कोल ये तीन चीज़ां ने, जुबान वाहिगुरू दी वडियाई च, कंठ भी उहदी सिफत च, ते हिरदा उहदे प्रेम दे नाल जिन्हां दा भरिया है, उन्हां ते फिर माया कोई प्रभाव नहीं पा सकती है, क्योंकि उन्हां दे कोल माया तो बचन वाला श्रेष्ठ वाहिगुरू दा अकाल पुरख परमात्मा दा नाम मौजूद है। 33 नंबर श्लोक च महाराज फरमान करते ने उन्हां जीवां बारे जिहड़े परमात्मा दी बंदगी तो, गुरु दे उपदेश तो, गुरु दे ज्ञान तो टुटे हन। गुरमंत्र ही नस्या जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्टन है। मंत्र ही नस्या, इनू शब्द नूं आपां सस्से दे सिहारी लगा के ऐड़ा। हिणस्या दा भाव है हीणे हन, विहूणे हन। जो प्राणी, जिहड़े प्राणी गुरु दे उपदेश तो, गुरु दे शब्द तो, गुरु दे ज्ञान तो सखणे हन, वो समझो भ्रिष्ट बिरती वाले हन, भ्रष्टन है। ते उन्हां दा जिहड़ा जन्म है त्रिगंत, त्रिग है फिटकार जोग है। और त्रिग शब्द पिछे भी आया सी, इहदा भाव जो कोशां दे विच लिखिया है, किसे नूं 1000 वार फिटकार पाउणी होवे एक शब्द है त्रिग, उहनूं 1000 फिटकारां वो भ्रिष्टे होए जीवन वाला केड़ा? जिहड़ा गुरु दे मंत्र तो, गुरु दे शब्द तो, गुरु दे ज्ञान तो सखना है, गुरु उपदेश तो जिहड़ा भी होना है, ਉਹਦਾ जीवन फिर किदां दा जीवन है? ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ शरीर दे विच है, पर गुरु कहते ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ना कहो, ਉਹਨੂੰ ते पशु कहो। ਤੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ भी 1000 तरह के पशु हैं, पर उस बंदे की तुलना गुरु किहड़े पशु दे नाल करदे हन? कूकर है, शूकर है, गर्दब है, काका है, सर्प ने, तुल खल है। कूकर दा भाव की है? कुत्ता। हुण कुत्ते बारे बाणी दे विच 2 पक्ष कहे गए हैं। एक तो महाराज ने उस वफादार कुकर की गल भी की है, जिदे तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते प्रेरणा लै।
स्वामी कोगरै ज्यों सदा, सुवान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। ओदी वफादारी दी मिसाल, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाउ, गले हमारे जेवरी जै खिंचै ते जाऊं। पर एक वो हड़किया होया कुत्ता भी हुंदा जिहड़ा अपने मालक नूं भी कट्टण लग जांदा है। महाराज कहंदे लोभी जंत ना जाने, भख अपख सब खाए। ओदी हालत की है? हड़के हुए कुत्ते दी तरह। लोभ ग्रस्यो दसों दिश धावत, आसा लगियो धन की। और इदां दी बिरती वाला जिहड़ा जीव है वह हड़के हुए कुत्ते दी तरह। महाराज कहंदे जिहड़ा रब दे नां तो गुरु दे उपदेश तो टुटिया है, उहदी बिरती उस कुत्ते दी तरह है। दूजे नंबर ते सूकर है। सूकर है दा भाव की है? सूर। ते सूर दा काम की हुंदा है? गंदगी खाना। जिहड़ा गुरु दे उपदेश तो टुटिया वो दिन रात निंदिया चुगली दी गंदगी खाण च ही लग्या रहिंदा है। महाराज कहंदे वो सूर तो घट नहीं जे। तीजे नंबर ते गर्दब है, गधा। हुण ये उन्हां जानवरां दा नाम सतगुरु लै रहे ने जिन्हां नूं आम हालातां दे विच कोई बहुते चंगे नज़रीए दे नाल नहीं वेखिया जांदा। महाराज कहंदे वो गधे दी तरह दूजियां दे अवगुणां दा भार ही सारी जिंदगी अपने पिंडे ते ढोंदा रहिंदा जे, जिहड़ा बंदा गुरु दे उपदेश तो सखना है। काकै, काकै दा भाव है कां। ते कां बारे भी गुरु कहंदे वो गंदियां थावां ते चुंझां मारदा फिरदा है। उहदी हालत भी गुरु दे उपदेश तो टुटे हुए मनुख दी हालत भी कां वर्गी। ते सरपने दा भाव है सप। गुरु की बाणी जदों आपां पढ़दे हां ते सतगुरु सप दी जोन नूं दुखदाई जोन कहिंदे। सब तो दुखदाई जोन, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। जिहड़ा सिमरन तो सखना बंदा है वो अंदरों अंदर ही किदां सड़दा है। महाराज कहंदे जिवें सप, क्योंकि सप दे अंदर है विष। ते जिवें सानू कई बार वध घट बंदा खा लवे ते मसाले अंदर छाती ते जम जाण ते जलन हुंदी है। सप दे अंदर विष जहर हुंदा है ते उस जहर दी बड़ी जलन हुंदी है जिहड़ी सप नूं तड़फा सुटदी है। कबीर साहब कहंदे उस जलन तो, उस साड़ तो, सेक तो बचण दे लई सप चंदन दे दरख्त दा भी सहारा लैंदे हन। क्यों? क्योंकि चंदन दा दरख्त ऐन बर्फ दी तरह ठंडा हुंदा है। ते वो बर्फ दी तरह जिहड़ा ठंडा चंदन है, सप उहदे दुआले लपेटे मार के रखदे हन तां कि जिहड़ी उहनां दे अंदर दी जलन है, साड़ है, उहदे तो कुछ राहत प्राप्त होवे। कबीर साहब ने वैसे गल एक होर पक्ष तो कीती है। कहंदे कबीर संत ना छाड़ै संतई, जो कोटक मिलै असंत, जो मैलागर भयंगम बेढ़िया शीतलता ना तजंत। कबीर साहब कहंदे जिहड़े रब्बी प्यारे ने उन्हां नूं हज़ारां पापी मिलन, गुनाहगार मिलन, अवगणियारे मिलन, वो अपनी संतताई नहीं छड्डदे। किदां नहीं छड्डदे हन? जिवें हज़ारां सप चंदन दे दरख्तां नूं लपेटे मार के रखदे हन। चंदन ओनू ते ठंडा कर दिंदा है पर उहदे सेक करके साड़ करके आप गर्म नहीं हुंदा है। इदां रब्बी प्यारे पापियां नूं ते निर्मल बना दिंदे हन पर इदां नहीं कि वह पापियां च बह के आप पापी बनन। सो कहण दा भाव महाराज कहंदे बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावै, अंत चलै गुहारी। सप दी जोन नूं दुखदाई जोनां च गुरु गिणदे ने। ते गुरु कहंदे ओ बंदे दी हालत सप दी तरह जे। जिन्ना मर्जी उहनूं सप बारे आपां कहंदे जिन्ना मर्जी उहनूं दुੱਧ पियावो, सप किसे दे मित नहीं हुंदे हन। इसे तरह वो बंदा किसी का मित नहीं जी हुंदा, भावें जिन्नी मर्जी उहदे नाल हमदर्दी जतावो, उहदा भला करो, उहदी सेवा करो, सप है उन्हें डांगी सुटना है। महाराज कहंदे गुरमंत्र ही नस्या जो प्राणी, त्रिगंत जन्म भ्रष्ट नै, कूकर है शुकर है गर्दब है, काकै सर्प नै तुल खलै। वो बंदा कुत्ते सूर गधे कां ते सप दे बराबर है जिहड़ा गुरु दे उपदेश, गुरु दे मंत्र, गुरु दे ज्ञान तो सखना है। सो गुरु के ज्ञान दे नाल जुड़ के इंसान बनना है, बंदे बनना है और गुरु के उपदेश ज्ञान दे नाल जुड़ के ही
इदों भी अगली अवस्था तक पहुँचना। काठों श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया, से पश परेत सुर नर भय। गुरु कृपा करे। गुरु साहिब जी दे पावन बचनां दा, उपदेशां दा भाव साडे हिरदे च वसे। शुद्ध स्पष्ट ये बाणी पढ़द्या होया बाणी नूं अपने जीवन का आधार बना जीवन सफल बनाइए। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, विचारां करदियां होइयां भुल्लां नच तारनियां। गज वज के फतेह दी सांझ पाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।